students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is some natural phenomena. Tickle your brain to answer. Why is a lightning conductor fixed in fall buildings? तो lightning conductors को install किया जाता है fall buildings में. Why is that? इस chapter में आप यही जानने वाले हैं. There are some natural phenomena such as thunderstorms, cyclones and tornadoes that occur in nature. Some other natural phenomenon are earthquakes, tsunami, etc. You have already learnt about some of them in previous class. तो आपके आसपास बहुत सारी natural phenomena होते हैं. Earthquake हो गया, tornadoes हो गए, cyclones हो गया. ये सारे natural phenomena हैं जो अपने आप ही nature में आकर करते रहते हैं. You've also studied about lightning. In this chapter, we will explore what causes lightning. To understand the cause of lightning, we need to understand the concept of electric charges, which will be discussed in detail. Also, we will study about another natural phenomena, the earthquake. तो lightning कैसे होती है, कौन से चार्जेस इसमें से निकलते हैं, क्या आयंस होता है, किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं, ये भी आप जानने वाले हैं. प्लस एक आपका नेचुरल फिनोमिना जो कि भूकंप अर्थक्वेक है, वो किस तरीके से आकर करता है, वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. इलेक्ट्रिकल चार्जेस. We already know that atoms are made of protons, neutrons and electrons. Protons are positively charged neutrons, have no charge and electrons are negatively charged. तो आपके जितने भी ये atoms होते हैं ये protons जो कि positively charged ions हैं, neutrons जिनमें कोई charge नहीं होता है, and then comes your electrons जो कि आपके negatively charged particles होते हैं. In this normal stage, an atom has an equal number of electrons and protons and it carries no charge. Hence, it is electrically neutral. However, any disbalance in the number of protons and electrons creates an electric charge. The charge on the body is positive if the number of protons exceeds the number of electrons. If the number of protons is lesser than the number of electrons, the charge on the body is negative. अब क्या होता है, अगर किसी एक बॉडी में आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम नंबर के हैं और तो उसमें क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है. द मोमेंट ये डिसबैलेंस आ जाता है, कोई एक ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना स्टार्ट कर जाता है. अगर किसी में आपका प्रोटॉन्स एक्सीड कर गया है इलेक्ट्रॉन से तो वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है. अगर प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वी से दैट इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी. नो इट टू. Protons and neutrons together form the nucleus of an atom as they are present in the center, while the electrons revolves around the nucleus in orbits or shells. तो protons और neutrons जो होते हैं वो आपके एक साथ होते हैं, न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं जैसे कि यहाँ बीच में, और जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के आसपास आपके एक ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में. चार्जिंग अ बॉडी. An electrically neutral object can be charged in three ways. Number one by friction, second by conduction and third by induction. कोई एक नॉर्मल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है तो या तो आप उसको फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं या फिर इंडक्शन. यही तीन प्रोसेसेस हैं. नंबर वन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. A body can be charged by rubbing with the other body. Take a plastic scale or a comb and rub it against your dry hair 8 to 10 times. Keep small pieces of paper on a table. Bring the freshly rubbed comb near the pieces of paper. You will see that the pieces of paper get attracted to the comb. It happens because the comb gets charged. अब आपका क्या है, आप पहले भी आपने अलग अलग क्लासेस में पढ़ा है, अगर आप एक कोम को अपने हेयर के पास 8 से 10 बार ऐसे रब करेंगे और पीसेस ऑफ पेपर को उसके पास लेकर आएंगे तो उसके ऊपर अपने आप ही चिपकने लग जाएंगे. तो ये क्या है, फ्रिक्शन के थ्रू आपने कोम को चार्ज करा है. सेकेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन. A body can also be charged by conduction. If a charged object is touched to an uncharged object, the electric charge flows from the charged object to the uncharged object.
By this, the object attains the same charge as the charged body. The method of charging body is called the charging by conduction. अब सिंपल सा है, अगर आपकी कोई एक बॉडी है जो कि चार्ज है यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी एक बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, दोनों अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड बोथ आर कंडक्टर्स, तो क्या होता है, करंट किस तरीके से फ्लो करता है, इट फ्लोज फ्रॉम द चार्ज्ड बॉडी टू द अनचार्ज्ड बॉडी. तो नेचुरली ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज हो जाएगी एंड दिस प्रोसेस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन. थर्ड, चार्जिंग बाय इंडक्शन. Induction is another method of charging a body. If a charged object is brought close to an uncharged object but does not touch it, the charged body induces the opposite charge on the uncharged body. Thus, method of charge transfer is called induction. अब क्या है, अगर आपने इंडक्शन से करना है, इसमें क्या होता है, आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को पास तो लेकर आते हैं बट कांटेक्ट में नहीं होता. तो इसमें क्या होता है, जो चार्ज बॉडी होती है इट इंड्यूसेस, रिलीज करती है अपने चार्ज पार्टिकल्स अनचार्ज बॉडी पे और उसको करंट पास कर देती है. तो दिस मेथड इज अ ट्रांसफर बाय इंडक्शन. ट्रांसफर ऑफ चार्जेस. Electric charges from a charged object can be transferred to a neutral object through a metal conductor. A gold device called electroscope is used to detect and measure charge and is based on the above principle. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट से, उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में थ्रू अ मेटल कंडक्टर. एक गोल्ड की डिवाइस है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, उसको चार्ज मेजर करने के लिए यूज करा जाता है, जो ऊपर हमने प्रिंसिपल पढ़ा उसी पे ये बेस्ड है. इट कंसिस्ट्स ऑफ अ ब्रास रॉड फिटेड इन अ ग्लास जार थ्रू अ रबर स्टॉपर. A brass disc is present at the top of the brass rod. The lower end of the brass rod that lies inside the beaker has two thin gold leaves hanging parallel to each other. The lower inner sides of the glass jar has metal foil which increases the sensitivity of the electroscope. तो electroscope आपका किस चीज से बना होता है, एक ब्रास रॉड फिट होती है इनकी ग्लास जार के अंदर एक रबर स्टॉपर के थ्रू. जो ब्रास डिस्क होता है वो आपका टॉप ऑफ द ब्रास में प्रेजेंट होता है, लोअर एंड पे आपका ब्रास रॉड होता है जो कि आपके बीकर के अंदर होता है, जिसके अंदर आपके दो गोल्ड लीव्स होते हैं जो एक दूसरे के आजू बाजू पैरेलली हैंग कर रहे होते हैं. जो लोअर साइड्स होती है ग्लास जार की वो एक मेटल कॉइल होती है जो कि इलेक्ट्रोस्कोप की जो सेंसिटिविटी है उसे और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है, जिससे नेचुरली आपके चार्जेस और भी ज्यादा हाई स्पीड से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली पास ऑन हो जाएंगे. एक्टिविटी 1. Aim to show transfer of charge from a charged body to an uncharged body using a gold leaf electroscope. Method: take a gold leaf telescope, take a glass rod of plastic scale and rub it with a silk cloth so that it gets positively charged. Bring the charged glass rod or plastic scale near the brass disc of the electroscope and touch it. You will observe that the gold leaves inside the electroscope diverge. This happens because on touching the charged rod with the brass disc, the charge flows from the rod to the gold leaves along the brass rod. Since both the gold leaves carry the same charges, they repel, thus diverge. अब आपको क्या करना है, आपको पता चलेगा किस तरीके से जो चार्ज बॉडी होती है उसमें से अनचार्ज बॉडी में आपका चार्ज फ्लो हो सकता है बाय यूजिंग अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. आपको एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेना है, एक ग्लास रॉड लेना है या फिर आप प्लास्टिक स्केल भी ले सकते हैं और आपको उन दोनों को रब करना है सिल्क क्लॉथ में जिससे कि पॉजिटिवली वो चार्ज हो जाए. अब आपको क्या करना है, चार्ज ग्लास रॉड को या फिर प्लास्टिक स्केल को आपको उस ब्रास डिस्क के पास लेकर आना है इलेक्ट्रोस्कोप के और टच करना है. आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो गोल्ड लीव है आपके इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर वो डाइवर्ज कर जाएगी. डाइवर्ज क्यों करेगी, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही आप टच करेंगे चार्ज रॉड को और ब्रास डिस्क को, दोनों के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट हैं गोल्ड लीव के अंदर भी वो पॉजिटिवली चार्ज है, सेम चार्ज है, तो इसीलिए वो दोनों रिपेल करेंगे, हेंस डाइवर्ज करेंगे. Next, touch the brass disc with your hand. The gold leaves collapse and come back to their original position. This happens because the gold leaves lose charge to the earth through your body, as the human body is a good conductor. अब आप
इसके बाद क्या करेंगे, ब्रास डिस्क को अपने हाथ से टच करेंगे और गोल्ड लीफ जैसे ही आप उसको टच करेंगे ब्रास की डिस्क को, वो कोलैप्स हो जाएगी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ह्यूमन बॉडी अच्छी कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, तो जैसे ही आप उसको टच करेंगे लीफ को, वो अपना चार्ज लूज कर देगी थ्रू द अर्थ एंड योर बॉडी। As seen the above activity, the charge on the leaves goes into the earth through your body. The leaves are then said to be discharged. The process of transfer of charges from a charged body to the earth is called earthing or grounding. तो यही होती है earthing, जिसमें कि एक चार्ज बॉडी से सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर होके अर्थ की तरफ चला जाता है। Lightning. Due to heat of the sun, the warm air and water vapor rises up and the cold air from above sinks down in to take its place. When cold air molecules rub against hot air molecules, electrons of hot air gets transferred to cold air and vice versa. When clouds are formed, it has been found that positive charge accumulates near the upper part of the cloud and negative charge accumulates near the lower part of the cloud. अब क्या होता है, सूरज से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, वाटर वेपर ऊपर की तरफ राइज अप करता है, और जो कोल्ड एयर होती है अबव, वो उसी खाली जगह को भरने के लिए नीचे की तरफ आ जाती है। अब जैसे ही क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, ये जो आपकी गर्म हवा और ठंडी हवा जब आपस में मीट करते हैं तो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स रब होते हैं अगेंस्ट द कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स। अब क्या देखा गया है, ये देखा गया है कि जैसी क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है, अपर पार्ट पे तो आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं और लोअर पार्ट पे आपके नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस अक्यूमुलेट हो जाते हैं। Although air is a bad conductor of electricity, but when two clouds are different heights having enormous amount of positive and negative charges approaches each other, there becomes a good conductor of electricity and this phenomena is called electric discharge. अब एयर आपकी इन जनरल अच्छी कंडक्टर नहीं होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बट जब ये दोनों क्लाउड्स जो कि अलग अलग हाइट्स पे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एयर क्या हो जाती है, इट कन्वर्ट्स इनटू गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इस फिनोमेना को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। Electrons from a negatively charged clouds push their way through air to reach a positively charged cloud at different heights. As a result, air gets white hot and a yellowish white streak of light is formed. This is called lightning. अब क्या होता है, अलग अलग हाइट्स पे आपके क्लाउड्स है, इनॉर्मस इसमें आपके चार्जेस है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो एयर को ये पुश करते हैं ताकि एक क्लाउड दूसरे क्लाउड से जाके मिले। अब जैसे ही ये मिलते हैं अलग अलग हाइट्स पे, जो आपका व्हाइट हॉट और येलोविश व्हाइट एरिया होता है या स्ट्रीक होती है लाइट की, वो फॉर्म होने लग जाती है द मोमेंट दीज क्लाउड्स मीट ईच अदर, जिसको आप क्या बोलते हो, लाइटनिंग। Because of lightning, intense heat is generated. The air suddenly expands and sends out high pressure waves with the caps of thunder. As we understand the basic phenomena, we need not get frightened by lightning like the ancient people did. However, lightning would destroy life and property. It is therefore necessary to take preventive measures to protect ourselves. The lightning can get trees and buildings on fires. अब क्या होता है, फिनोमेना बिल्कुल बेसिक है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं होती है लाइटनिंग से। बहुत ज्यादा इंटेंस हीट भी जनरेट होती है, इससे एयर एक्सपैंड हो जाती है, बट अगर एक्सेसिव लाइटनिंग हो गई, इससे लाइफ भी खतरे में है और आपकी क्या क्या प्रॉपर्टी भी खतरे में है। बहुत सारी फॉरेस्ट में इसी वजह से आग लग जाती है और बिल्डिंग्स में भी आग लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ लाइटनिंग की वजह से। सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग। No open place is safe during lightning or thunderstorm. Rush to a safer place like a house or a building on hearing thunder. If you are traveling by car or by bus, you are safe inside with windows and doors of the vehicle shut. अब किसी भी अगर बिजली कड़क रही है, खुली जगह सेफ नहीं है, तुरंत ही किसी बिल्डिंग के अंदर चले जाइए या फिर आसपास कोई भी घर बिल्डिंग दिख रही है उसके अंदर चले जाइए। ट्रैवल आप कर रहे हैं, गाड़ी में है, बस में है, तो आप सेफ है काफी हद तक, जस्ट आप अपने दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर लीजिए। Do's and don'ts during thunderstorms. Inside a house, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Lightning can strike telephone cords, electrical wires and metal pipes, so avoid contact with these during a thunderstorm.
यूज ओनली मोबाइल फोन इफ नीडेड एंड मेक श्योर नॉट टू कॉल अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर कॉल थ्रू अ वायर्ड फोन। तो आपकी जब लाइटिंग होती है तो लैंडलाइन वाली फोन्स जिसमें वायर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं जो आपके घर के बाहर हैं, तो उससे खतरा हो सकता है। जितना हो सके मोबाइल फोन्स का यूज करिए और ऐसे किसी इंसान को मत कॉल करिए जिसके वहां पे थंडरस्टॉर्म हो रहा है और वो भी लैंडलाइंस यूज कर रहे हैं। बेदिंग शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद रनिंग वाटर। उस टाइम पे ज्यादा नहाने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पे थंडरस्टॉर्म खत्म हो जाए तब आप नहा सकते हैं, क्योंकि रनिंग वाटर में सबसे ज्यादा ये इलेक्ट्रिक चार्ज स्ट्राइक करते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक टेलीविजन, कंप्यूटर्स शुड बी अनप्लग्ड। जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, चाहे आपका एयर कंडीशनर हो, बिल्कुल बंद कर दीजिए, उस टाइम पे यूज आपको नहीं करना है इसका। आप बिल्कुल एमसील शट कर दीजिए, आप टेलीविजन के प्लग्स निकाल दीजिए, रेफ्रिजरेटर के प्लग्स निकाल दीजिए, क्योंकि उससे आपके घर पे आग भी लग सकती है, तो ये आपको नहीं करना है। आउटसाइड द हाउसेज, घर के बाहर है तो क्या करना है? Open vehicles like motorbikes, tractors, construction machinery and open cars are not safe. Open places like parks, roads and shelter under the tall trees is not safe. Do not carry umbrella during thunderstorm. In forests, take shelter under short trees. Do not lie flat on the ground because you expose more surface of your body to lightning. मोटरबाइक्स हो गई, साइकिल्स हो गई, पैदल आप जा रहे हैं, ओपन ट्रक्स हो गए, ये सारी चीजें सेफ नहीं है। ट्रीज के नीचे शेड ले रहे हैं वो भी सेफ नहीं है, फ्लैट लेट जाएंगे वो भी सेफ नहीं है। आप ज्यादा बॉडी का सर्फेस आप लाइटनिंग की तरफ कर रहे हैं, आपको और भी ज्यादा खतरा हो सकता है। फॉरेस्ट में जा रहे हैं, छोटे ट्रीज जो हैं उनके नीचे आप शेल्टर लीजिए, अगर कोई और ऑल्टरनेटिव दिख ही नहीं रहा है। लंबे लंबे ट्रीज में तो बिल्कुल नहीं करना है, उसमें सबसे पहले लाइटनिंग पहुंचती है, उसमें ज्यादा जल्दी आग लग जाती है, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। Lightning conductors. To protect high story from damage of lightning, a lightning conductor in form of a tall metal rod is fixed on them. अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उसमें आपके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इनमें आपके कंडक्टर्स यूज करे जाते हैं जो कि लाइट को अपनी तरफ खींच लेते हैं और बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होता है। This idea was first given by Benjamin Franklin about 250 years ago. Lightning conductor consists of a metal rod ending in spikes, sharp copper strikes at the top. The lower end of the rod is attached to a copper plate buried deep inside the earth. If lightning do strike the building, it flows harmlessly to the earth through the metal rod and no damage is caused to the building. अब क्या है आपका, ये आपका सबसे पहले आइडिया दिया गया था जो कंडक्टर रॉड का है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अराउंड 250 साल पहले उन्होंने कहा था इसमें जो मेटल रॉड है वो लाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, जिसकी वजह से सारी लाइट वहां पे स्टोर हो जाएगी और इसका नुकसान बिल्डिंग तक नहीं पहुंचेगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट अर्थक्वेक। Earthquakes are sudden shaking and vibration at the surface of the earth. The stresses created inside the earth are released when an earthquake happens. They last for a very short time, generally not more than a minute. However, the impact and devastation an earthquake may cause can be severe and its effects can be felt across continents. The technology to be able to predict an earthquake has not been discovered yet. अब क्या है? अर्थक्वेक का मतलब होता है सडनली जब अर्थ के सरफेस पे शेकिंग होती है वो आपको बाहर तक फील हो जाती है, वाइब्रेशंस आपकी बाहर तक आती हैं। यूजुअली ये 1 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करता है, लेकिन उसके कितना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का आपका अर्थक्वेक है, ऑलमोस्ट 20 से 30 सेकंड का अगर हाई इंटेंसिटी का आपका अर्थक्वेक हुआ तो वो 30 सेकंड में ही उस एरिया को तबाह करके रख देगा, सारी बिल्डिंग्स खत्म कर देगा, आसपास जितना भी आपका सामान है उसको बुरी तरीके से डेविस्टेट कर देगा। इंटेंसिटी पे ये ज़्यादातर आपका डिपेंड करता है। अब बारिश कब होगी ये आपको पता चल सकता है, सुनामी आने वाली है पता चल जाएगा, टॉर्नेडो आने वाला है उसकी भी अब आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको एडवांस से पता चल जाता है। बट अर्थक्वेक कब आएगा, कहाँ पे आ सकता है या अभी आने वाला है, ऐसी एरियाज आप नहीं बता सकते, ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी नहीं आई हैं। नो इट टू। Plate tectonic theory. The plate tectonic theory states that the surface of the earth is made up of several tectonic plates that move with respect to one another. अब ये जो थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो अर्थ की सरफेस है वो अलग अलग प्लेट्स पे है जो कि एक साथ जुड़ी हुई हैं, बीच से आपकी अलग अलग बहुत सारी मल्टीपल छोटी बड़ी प्लेट्स हैं जिनकी बेसिस पे आपकी जो अर्थ की सरफेस है वो चल रही है, और यही प्लेट्स जब ज्यादा इंटरैक्ट कर जाती हैं तब आपका अर्थक्वेक आता है।
Structure of the earth. The earth consists of three parts. Number one is crust. It is the outermost solid shell of the earth. It is of non-uniform thickness and is thinner at the ocean floor. It is composed of a variety of rocks. सबसे पहले आपका आ जाता है क्रस्ट. आउटर मोस्ट लेयर होती है ये अर्थ की, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस है, कहीं पे मोटी आपको दिखेगी, कहीं पे पतली आपको दिखेगी, अलग अलग साइजेस की आपको दिखाई देगी. ज्यादातर आपको ये थिनर दिखाई देगी कहाँ पर, जहाँ पे ओशियन फ्लोर्स होते हैं, और यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के रॉक्स दिखाई देंगे. सेकेंड इज योर मैंटल. It lies just below the crust. It consists of semi-solid rocks, iron, magnesium and calcium. It is divided into various layers based on the scientific study of earthquakes. अब आता है mantle. Mantle में भी आपके inner mantle, outer mantle होता है, but that is 2D, वो आपको आगे क्लासेस में पता चलेगा. यहाँ पे आपके सेमी सॉलिड रॉक्स होते हैं, आयरन होता है, मैग्नीशियम यहाँ बहुत सारा होता है एंड कैल्शियम होता है. अब इसको भी मल्टीपल लेयर्स में क्यों डिवाइड करा गया है? बेसिकली दो ही है, इनर मैंटल और आउटर मैंटल, ताकि साइंटिफिक स्टडी करी जा सके. क्योंकि मैंटल में भी जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो अपर मैंटल है उसकी स्ट्रक्चर अलग है, फॉर्मेशन अलग है, और इनर मैंटल की फॉर्मेशन अलग है. तीसरा आपका आ जाता है कोर, इनर मोस्ट लेयर. It is the innermost part of the earth and is divided into two sections. So the outer core contains iron and nickel in molten state. The inner core is believed to be made of compressed iron and nickel in the solid form. अब कोर क्या है? इनर मोस्ट है, दो सेक्शंस में ये डिवाइडेड है. जो आउटर कोर है, इट इज बिलीव्ड कि उसमें आयरन और निकल है, लेकिन मोल्टन स्टेट में. मोल्टन स्टेट होती है ना ही सॉलिड ना ही लिक्विड, सेमी लिक्विड होती है. बट इनर कोर में भी आपकी यही सेम चीजें हैं, आयरन और निकल है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है. द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मैंटल टुगेदर फॉर्म द लिथोस्फेयर. अब लिथोस्फेयर जो है, जो क्रस्ट है और मैंटल की अपर लेयर है, वो आपकी फॉर्मेशन करती है. ये पूरा आपका अर्थ का जो सरफेस है वो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. सबसे पहले आपका क्रस्ट यहाँ पर आ जाता है, फिर आपका मैंटल आता है. मैंटल भी आपका अपर मैंटल और लोअर मैंटल में डिवाइडेड है. मैंटल भी आपका दो पार्ट्स में है, अपर मैंटल, लोअर मैंटल. फिर आपका कोर आ जाता है, जो कि आपका वो भी दो सेक्शंस में डिवाइडेड है. एक आपका अपर कोर आता है, उसके बाद आपका इनर कोर आता है. आपका जो क्रस्ट है और अपर मैंटल है, ये दोनों आपका लिथोस्फेयर की फॉर्मेशन करते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है. लिथोस्फेयर जो होता है आपका, लिथोस का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब होता है रॉक. तो इन दोनों पार्ट्स में आपका रॉक यहाँ पर मिलता है. Earth's lithosphere is not in one piece. It is divided into many fragments, pieces called tectonic plates. अब यही जो लिथोस्फेयर है, सिंगल प्लेट ये नहीं है. बहुत सारे रॉक्स हैं, बट ये सिंगल फॉर्म में नहीं है, वन पीस नहीं है. यानी कि अलग अलग पीसेस में डिवाइडेड है, जिसको आप क्या बोलते हो? फ्रैगमेंट्स, पीसेस, और इन्हीं को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स. These plates move continuously. When they brush past one another or collide, they cause a disturbance in the Earth's crust. The movement of plates results in earthquakes, volcanic eruptions, tsunamis, etc. अब यही plates जो होती हैं अलग अलग pieces में हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे पत्थर ले लीजिए, अगर वो एक दूसरे के आसपास से नॉर्मली निकल रहे हैं, नॉर्मल मूवमेंट हो रही है, तो कुछ नहीं होगा. बट द मोमेंट दे कोलाइड, ऐसे हिल जाएंगे. अब उस पत्थर के ऊपर अगर कुछ चीज है तो वो हिलेगी. अब कितना हिलेगी वो डिपेंड करता है कितनी जोर से आपकी प्लेट कोलाइड करी है. दो प्लेट्स आप लीजिए, उसके ऊपर आप कुछ सामान रख दीजिए, अगर वो सिर्फ हम नॉर्मल चलाते रहेंगे तो इतना पता नहीं चलेगा, ना ही ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस होगी. उन दोनों प्लेट्स को आपस में ऐसे आप कोलाइड कर दीजिए, बहुत जोर से आप कोलाइड करेंगे तो उसके ऊपर जो सामान है वो हिलने लग जाएगा. बिल्कुल इसी तरीके से अर्थक्वेक होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सुनामीज होते हैं, क्योंकि ये प्लेट्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं या स्लाइड पास करते हैं और एक दूसरे को टच कर जाते हैं, तो ऊपर डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसको आप अर्थक्वेक्स, सुनामीज या फिर वोल्केनिक इरप्शंस के नाम से जानते हैं. How earthquakes are caused? The temperature of the core is very high, while the temperature of the crust is just about 300 degrees Celsius. So there is a constant flow of heat from the core to the crust. This sets a convection current in the molten magma. Due to this, a pressure is developed in the magma. This pressure causes movements in plates. The plates keep moving around slowly and continuously. The plates squeeze or stretch or suddenly slip past another or get crushed or fractured. अब क्या है,
जो आपका कोर है, ये आपकी अर्थ का स्ट्रक्चर है, सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट है वो आपका कोर है, आउटर मोस्ट आपका क्रस्ट है। अब इस कोर में बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है, बट ऊपर क्रस्ट वाले फॉर्म में इतना हाई टेम्परेचर नहीं है, इट इज जस्ट मैक्सिमम 300 डिग्री सेल्सियस तक आता है। अब क्या होता है, मैंटल में भी आपका, लोअर मैंटल में और क्रस्ट में आपका मोल्टन मैग्मा होता है, जिसको आप बाहर निकल जाता है तो उसको आप लावा कहते हैं। अब ये जो मोल्टन मैग्मा है, क्योंकि ये भी हिलता रहता है, ये भी मूवमेंट शो करेगा, तो नेचुरल सी बात है ऊपर की तरफ अगर मूव करेगा तो जितनी भी प्लेट्स हैं वो भी मूव करेंगी। जस्ट लाइक आप प्लेट के ऊपर अगर कुछ रख रहे हैं, उसके ऊपर कुछ चीज फैली हुई है, वो भी मूव कर रही है, तो टू सम एक्सटेंट आपकी प्लेट भी मूव करने लग जाएगी। तो प्लेट्स जब ये धीरे धीरे मूव करती हैं, बट कभी कभी क्या होता है, एक्सेसिव मूवमेंट हो जाता है, ज्यादा मूवमेंट हो जाता है, प्लेट्स टकरा जाती हैं, टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है प्लेट में। हड्डी अगर आपके हाथ की टूटती है तो हाथ आपका बहुत टाइम तक हिलता नहीं है, ढंग से मूवमेंट नहीं करता। सेम वे में आप वहां प्लेट्स की भी बीच से फ्रैक्चर आ जाता है, दोनों प्लेट्स अलग हो जाती हैं। दोनों प्लेट्स अगर टूट जाएंगी, प्लेट में खाना रखा है, प्लेट ही बीच से टूट गई, तो नेचुरल सी बात है उसके ऊपर जो खाना है वो भी नीचे फैल जाएगा, वो भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस फॉर्म में आपका अर्थक्वेक होता है। नीचे प्लेट्स टकराती हैं, फ्रैक्चर होती हैं, लेकिन उसके ऊपर सरफेस पे आपकी सारी चीजें उतल फुतल हो जाती हैं। Due to movement of these plates, forces are induced on themselves and released, and it moves through the earth in the form of waves. On the surface of the earth, we feel it as a tremor. We call this an earthquake. The great resulting forces may also cause changes in the landscape, mountains or formed and volcanoes may erupt. अब क्या होता है, यही मूवमेंट्स होती है, वेव्स आपकी जनरेट होती हैं। जैसे ही वेव्स बाहर आपको फील होने लग जाती हैं, ये क्या आप बोलते हैं इनको, ट्रेमर्स, और इन्हीं ट्रेमर्स को आप क्या बोलते हो, अर्थक्वेक। इन्हीं की वजह से बहुत सारे माउंटेन्स भी फॉर्म हुए हैं, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स हैं जो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से ही फॉर्म हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपकी अर्थ के सरफेस के अंदर हो रही होती हैं। The surface where the plates slip are weak points and are called faults or fault planes. अब वो सरफेस जहां पर आपकी, अगर आपकी कोई मजबूत प्लेट है तो अब आपस में अगर टकराएंगी भी या कुछ होगा तो वो टूटेंगी नहीं, बट जहां पर आपकी प्लेट्स वीक होती हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती है। कांच की प्लेट लीजिए, स्टील की प्लेट लीजिए, स्टील की प्लेट को आप कितनी बार भी आप आपस में टकराइए वो टूटेंगी नहीं, थोड़े बहुत फॉल्ट्स आ जाएंगे बट टूटती नहीं है। कांच की प्लेट आप लीजिए, एक बार नीचे फेंकेंगे, आपस में टकराएंगे, वो टूट जाती है। तो ऐसी प्लेट्स जो अर्थ के सरफेस में होती हैं, वीक होती हैं, आसानी से फॉल्ट्स आ जाते हैं, उन एरियाज को आप बोलते हैं फॉल्ट्स या फिर fault planes. The location below the earth's surface where the earthquake starts is called the hypocenter, and the location directly above on the earth's surface is called epicenter. अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपकी अर्थ की सरफेस है, यहाँ से अगर इस पॉइंट से अगर आपकी अर्थक्वेक, या अभी हमने पढ़ा था वेव्स जनरेट होती हैं, जहां से ये वेव जनरेट होती है वो आपका हाइपोसेंटर होता है, और इसके ठीक परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्रीज पे, इस एरिया पे जहां पर आपको पहली बार अर्थ के सरफेस पे फील होती है अर्थक्वेक, जहां से फिर आपकी वेव्स फैलना शुरू करती हैं, वो आपका एपीसेंटर होता है। जहां से वेव्स रिलीज हो रही है, हाइपोसेंटर 90 डिग्रीज बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पे जहां पे ये वेव पहुंच रही है, ट्रेमर्स आपको अर्थ के सरफेस पे फील हो रहे हैं, वो आपका एपीसेंटर होता है। मोस्ट faults occur along the boundaries of plates, and there are the zones where earthquakes are more likely to occur. These zones are called seismic zones. अब आपके ऐसी बहुत सारी एरियाज होते हैं जहां पे ये प्लेट्स वीक होती हैं, एंड देयर आर चांसेस कि उन एरियाज पे सबसे ज्यादा आपके अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। अलग अलग लोकेशंस है, जैसे जापान हो गया, बहुत अर्थक्वेक्स वहां पर आते हैं। ऐसे जोन्स को आप क्या बोलते हो, सीज्मिक जोन्स। Other reasons for the occurrence of earthquakes are volcanic activity or human activity like nuclear tests carried out under the ground and building dams. Sometimes when the pressure is developed under a thin crust, it can break the crust and we say that a volcano has erupted. This causes earthquake. कैसे आ सकता है earthquake? कुछ तो natural reasons होते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम जो होते हैं वो या तो वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से आते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज। अब अर्थ के सरफेस के अंदर अगर कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग जो यूजुअली डिफेंस वाले करते हैं,
नीचे अंदर की तरफ अर्थ की सरफेस के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स की टेस्टिंग करते हैं। अब इतना ज़्यादा हाई साउंडिंग इतना अगर ब्लास्ट होगा तो नेचुरल सी बात है कि उसके आसपास जितना भी लैंड है उस पर कुछ असर तो ज़रूर पड़ेगा। क्या होता है, इससे प्लेट्स तक ये वेव्स जाती हैं और प्लेट्स ब्रेक होना शुरू कर देती हैं, उसकी वजह से वोल्केनिक इरप्शन होते हैं एंड देन वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से आपके अर्थक्वेक्स होते हैं। In India, the Himalayan region is a place high in earthquake activity. Other high earthquake prone areas are the northeast, Rajasthan, Kutch in Gujarat, parts of central India and some parts of South India. Some of the recent devastating earthquakes have been in Kutch, Latur and Jabalpur. The earthquake activity in Kenya, Maharashtra is believed to be due to the कोयना डैम। अब क्या है, ये जो आपका इंडिया का मैप है इसमें ये वाला जो रीजन है जहाँ ये पूरा रेड से मार्क हो रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक देखे जाते हैं। फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाला, ये जो एक्सटेंडेड रीजन है नॉर्थ ईस्ट वाला, ये भी हाई रिस्क वाला रीजन है, यहाँ पर भी अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। देन कम्स योर वेस्टर्न साइड जहाँ पे गुजरात है, रण ऑफ कच्छ है, यहाँ पर अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। और आप नोटिस करेंगे यूजुअली ये वो सारी जगह है जहाँ पे या तो आपका बहुत सारा वाटर बॉडीज हैं या वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, या फिर सेंट्रल इंडिया एंड देन कम्स योर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपके सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। ओवरऑल इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो हिमालयन वाला रीजन है यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की एक्टिविटी होती है। मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। Earthquakes generate seismic waves which can be recorded on a sensitive instrument called the seismograph. तो seismograph से पता चलता है कि earthquake किस intensity का आया, क्या magnitude है। A seismograph consists of a spring and a weight hanging from a frame that is placed along the earth's surface. As the ground vibrates, the vibrations are transferred to the frame of the weight through the spring. This movement is transferred to a recording drum which rotates on which a pen attached from the height marks the movement. A plot of the motion of the ground is obtained which is called a seismograph. अब क्या होता है, इस तरीके की एक डिवाइस होती है। इस डिवाइस में आपका एक स्प्रिंग होता है, एक वेट हैंगिंग करता हुआ होता है, ये जो है ये एक वेट हैंग कर रहा है इसके साइड में। जैसे ही अर्थ के सरफेस की तरफ ये पोजिशन्ड होता है, जैसे ही अर्थ से वाइब्रेशंस निकलती है ये मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी में एक पेन अटैच्ड होता है जो कि मार्किंग कर देता है कि आपका जो अर्थक्वेक है वो किस इंटेंसिटी का आया है। इस डिवाइस का नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ सिस्मोलॉजिस्ट। जो साइंटिस्ट आपके अर्थक्वेक को स्टडी करता है उसको आप सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। Seismologists have developed various ways to measure the strength of earthquakes. The first and the most well known is the Richter magnitude scale. तो बहुत सारे ऐसे methods हैं जिससे कि आप earthquake को measure कर सकते हैं, but जो सबसे ज़्यादा frequently use करा जाता है वह है आपका Richter scale. The calculation of Richter magnitude is based on the maximum strength of the vibrations measured by a seismograph and the distance of the instrument from the epicenter of the earthquake. The Richter scale is logarithmic, which means the each increase to magnitude indicates a 10-fold increase in the strength of the earthquake. A magnitude 5.0 earthquake, for instance, is 10 times stronger than a magnitude of 5.0. In terms of the energy released, the differences are given greater. The intensity of the earthquake is indicated by the amount of energy released. तो क्या है, ये logarithmic आपका स्केल होता है रिश्टर स्केल। 0.5 का मैग्नीट्यूड है तो वो 10 फोल्ड्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक में उससे रिश्टर स्केल पे रीडिंग आती है कितने मैग्नीट्यूड का आपका अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। Number 1, because of the earthquakes, the electrical power, water pipelines और gas pipelines may break and cause a fire in the area. earthquake से क्या होगा, pipelines आपकी अर्थ के सरफेस के नीचे प्लेस्ड रहती हैं, earthquake आएगा नेचुरली वो टूट जाएंगी जिसकी वजह से आग लग सकती है। Second, water saturated soil loses its strength and transforms from a solid to liquid. It is known as a soil liquefaction. This may cause lift tilting or sinking of buildings, bridges, etc. अब क्या होगा, earthquake आएगा, जितना सारा पानी आपका सॉइल में प्रेजेंट था वो सैचुरेट हो जाएगा, सॉइल को लिक्विफाई कर देगा, दलदल सा बना देगा। उससे क्या होगा, आपका जितनी बिल्डिंग्स या बाकी सारी चीजें उसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड होंगी, चाहे पेड़ हो कुछ भी हो, वो अंदर धंस जाएंगे।
Third, the collapse of buildings is a major effect of earthquakes which often take a heavy toll on life. सबसे ज्यादा क्या नुकसान देखा गया है? नॉर्मल रेजिडेंशियल एरियाज में आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, उसमें रहने वाले लोग भी मर जाते हैं. नंबर 4, डैम्स ऑन रिवर्स में क्रैक और कोलैप्स. अब जितने डैम्स आपके रिवर्स पे बने हैं उससे क्या होगा, वो डैम्स टूट जाएंगे, डैम्स टूट गए, पानी का बहाव बढ़ेगा, इससे क्या होगा, दूसरी कैलामिटी आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी. Earthquakes may cause floods, landslides and tsunamis. Earthquakes may range from a mild tremor to a large-scale earth movement, causing extensive damage over a wide area. A major earthquake can be quite devastating since it takes place without warning. अब क्या होता है, हल्के फुल्के झटके महसूस हो सकते हैं जिसमें कुछ नुकसान नहीं होता, प्लस दूसरी साइड पे इतना ज्यादा हाई ट्रेमर का आ जाएगा कि जितनी चीजें होंगी सब चीजें तबाह हो जाएंगी. तो आपके अर्थक्वेक्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के होते हैं. रेलवे लाइंस ऑफ्टन ट्विस्ट ड्यू टू हाई मैग्नीट्यूड्स ऑफ अर्थक्वेक्स, रोड्स में गेट ब्रोकन. सड़कें टूट जाती हैं, रेलवे ट्रैक्स मोल्ड हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से. Relief and rescue operations following an earthquake due to the damaged roads, railways may become difficult. Epidemics may break due to the shortage of basic amenities and resulting unhygienic conditions. अब क्या होगा, रोड टूट गई है, रेलवे ट्रैक्स टूट गए हैं, तो आपके जितने भी रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि खाना उन जगह पहुंचाना है, लोगों को इवैक्यूएट करना है, रोड से आप नहीं कर पाएंगे, ट्रेन से आप नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एक रास्ता बच जाता है, वो है बाय एयर. उसमें भी ज्यादा लोग अकोमोडेट एक बार में नहीं हो पाते. अब उस जगह पे जो लोग रह रहे हैं इस कैलामिटी के बाद, खाने की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, रहने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, अलग टाइप की बीमारियां भी फैल जाएंगी. सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट अर्थक्वेक्स. ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक रिमेंबर 3 थिंग्स: ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन. जब भी अर्थक्वेक आता है सडनली और आप बाहर नहीं भाग सकते हैं, सबसे पहले तो भगदड़ नहीं मचानी है. आप खुद भी मरेंगे, दूसरे भी साथ में मर जाएंगे, बच नहीं पाएंगे. आप भगदड़ नहीं मचानी है. जहां पर आप है, अगर वहां से बाहर निकलने का रास्ता बहुत दूर है तो जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर झुक जाइए. लकड़ी की ऐसी जगह देखिए जहां पे लकड़ी के दरवाजे हो या फिर ऐसी चीज हो जिसका बाउंड्री भी लकड़ी की हो, उसके नीचे आप झुक करके थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए. ड्रॉप अंडर समथिंग स्टर्डी लाइक अ लार्ज टेबल एंड होल्ड ऑन. कोई बहुत ही मजबूत सी चीजें, बड़ी बड़ी लकड़ियों की टेबल्स होते हैं, बेड्स होते हैं, उनके नीचे जाके छुप जाइए. प्रोटेक्ट योर आईज बाय कवरिंग योर फेस अगेंस्ट योर आर्म्स. अपनी आंखों को बचा लीजिए अपने हाथों से ढककर. इफ यू आर इन बेड, होल्ड एंड स्टे देयर कवरिंग योर हेड विद अ पिलो. बेड पर अगर आप हैं तो बहुत ज्यादा तेज झटका है, उठ के मत जाइए, आप गिर भी सकते हैं, उससे और चोट लग जाएगी. अपने आप को तकिए से ढक लीजिए. You may also run out and find a clear stop away from buildings, trees and electricity times. अब आपको क्या करना है, घर से आप अगर बाहर निकल चुके हैं सक्सेसफुली, बिल्डिंग से दूर चले जाइए, पेड़ों से दूर चले जाइए, और जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस हैं, तार लगी हुई हैं, खंबे लगे हुए हैं, उनसे दूर चले जाइए, खाली जगह पर जाइए. It is very difficult to protect the occurrence of an earthquake as it occurs suddenly. Violent earthquakes are often destructive as they cause serious damage to life and property. अब earthquake को आप रोक नहीं सकते हैं, internal activity है कुछ, तो ये होंगे ही होंगे, और कुछ लोकेशंस पे तो बहुत ज्यादा होंगे, तो इसके लिए आप प्रिपेयर्ड तो नहीं रह सकते हैं, बट earthquakes आए तो ये कुछ मेजर्स आप फॉलो कर सकते हैं. Keep in mind. Lightning, the streak of bright light produced when negative charges meet the positive charges. Seismic waves, waves of high energy which arises due to sudden ripping of two tectonic plates. Seismic forces, materials which allow electric current to flow through them. Earthquake, a sudden movement or a disturbance in the lithosphere. Electrolyte, the liquid which conducts electricity and undergoes decomposition. Richter scale, the scale which is used to measure the magnitude of an earthquake. तो लाइटिंग आपकी होती है, क्लाउड्स में आपके अलग अलग टाइप के पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं. सिस्मिक वेव्स होती हैं, सिस्मिक फोकस होता है जो आपकी अर्थक्वेक्स में आपकी अलग अलग एनर्जी रिलीज होती है. फिर आपके रिश्टर स्केल आता है जिसपे आपकी जो अर्थक्वेक होता है कितनी इंटेंसिटी का है वो आपको पता चलता है. लेट्स रैप इट अप. A body can be charged by friction, rubbing, induction and conduction. Like charges repel and unlike charges attract. An electroscope is a device used to detect and measure electric charge. It is based on the principle of charging by conduction.
When negative and positive charges in clouds meet each other, lightning is produced. Lightning conductors are installed in all tall buildings to protect them from lightning. The earth has 3 layers: crust, mantle and core. The magnitude of an earthquake can be measured on the Richter scale. An earthquake of high intensity can cause damage to life and property. अब आपकी बॉडी, आपकी अलग अलग जो आपकी बॉडीज होती हैं उसको आप या तो फ्रिक्शन से, इंडक्शन से, कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं. फिर आपको लाइटनिंग का प्रोसेस होता है, नेचुरल फिनोमिना है, अर्थक्वेक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का आता है. अर्थ आपके 3 पार्ट से बनी हुई है: क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं खुद से करिए.